he was a iconic guy. And incidentally, I knew his brother, and hence he made me meet him. Okay. And Harshad bhai was nice enough to be very warm and offered to do business with us. Because he needed a lot of brokers to execute his trades. His trades were in multiples. We said, boss, हम बहुत छोटे लोग हैं, boss अपने नहीं करने का है सब. What would be your worst investment? We lost everything in Manpasand, one of the consumer companies we bought few years back. I mean, it became zero. And how did you tackle that? Zero होगा फिर tension खत्म ना. Personal stock portfolio, which is, you had mentioned it is close to 3,400 crores. Now, last we have seen is about 4,000 plus. Sirs. So you met Motilal sir at RBG hostel only? I had not met him. I had seen him because he was junior. But I mean, हम फेल हुए थे तो हम मतलब घिस रहे थे वहाँ पर. ये बंदा फटाफट पास कर गया. तो ये मैथ्स कमेटी में था ये. तो ये सब उस्ताद लोग थे, सब मैथ्स कमेटी में रहने का, एकदम खाने पीने का, मजा करने का. So I had seen him. I had seen him by face, but I never got introduced in the hostel while we were there. Because he was junior to me, so I had different friend circle. But in 85, he was, I had my brother's flat, so I was staying there. And Motilal ji came to stay in Lokhandwala as a paying guest in one of those, places. CA बनने के बाद. Okay. We became CA together in 83. I was 2 years late, he was kind of on time. So उसके बाद जो है I went for research and all. Meanwhile he was doing double job in the sense that he was helping his brother. तो वो अहमदाबाद में खरीदते थे स्पॉट में सब शेयर्स, जो IPO में जो शेयर आए थे, और उसको यहाँ पर बेचते थे, विच इज़ T+15. तो 4-5%, 10% का कभी गैप होता था. बिकॉज इट वॉज सो इनएफिशिएंट मार्केट सिस्टम, बिकॉज देयर वाज नो टेलीकॉम. लाइक अहमदाबाद में भाव 45 रुपये चल रहा है और मुंबई में भाव 50 और 55 भी हो सकता है. इतना गैप होता था. बिकॉज समबडी हैज़ टू ट्रांसमिट द प्राइस कि इस शेयर का ये दाम हो गया है. तो क्या टेलको टिस्को जो ए ग्रुप के शेयर्स थे उसमें तो देयर वाज टैलेक्स एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. सो मार्केट वाज अ लॉट मोर एफिशिएंट. बट इन कैश मार्केट्स typically the transmission was very, very poor. So there was a good arbitrage possibility between Ahmedabad and Mumbai. And that's what we used to tell him the prices to be given in Ahmedabad. And suddenly they will know कि हाँ यहाँ पर भाव 5-7 रुपये बढ़ गया, जाके जल्दी से खरीद लेते थे वो. So 8-10% ऐसा कुछ भी पता नहीं कितना आर्बिट्रेज में, कभी 2%, 4%, 5%, because he has to sell next day successfully here and price can fall. So that risk he was taking. So he was putting his capital and sending the shares here. So he needed a broker. Where? In Mumbai. Okay, and he was doing that job, but he had a bad experience with one of the sub-brokers. उसने पैसा लेके डूब गया, ऐसा कुछ तो भी. So he was desperately in lookout for a good broker because business was growing. I met him and we started talking about his stock. हमको दूसरा कुछ समझ में आता ही नहीं था बात करने का. And he was very happy to talk to me. And we became friends. And I started understanding what he does. I had a research background. I was doing research at that time, equity research. So I used to in fact, I used to write IPO notes also. So I used to know all the companies which were typically IPO'd at that point of time. And those shares only used to trade in premium market. So I used to tell कि ये कंपनी अच्छी है, इसका शेयर खरीदो करके. So थोड़ा उस समय से रिसर्च में थोड़ा रिकमेंडेशन की बात चालू करते. तो मतलब अंधों में कान राजा वाली बात थी. सो उससे वो थोड़ा रिसर्च होने से दे हैड एन एज इन व्हाट टू बाय इन अहमदाबाद. हाँ, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप डेवलप होते रहा. एंड देन वी सेड लेट्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ ब्रोकरेज. बिकॉज हाई टाइम अपने पास पैसे तो है नहीं, तो बिना पैसे के मतलब कितना भी तुम्हारा होशियार हो क्या फ़ायदा. सो देन वी सेड लेट्स टेक अ प्लंज एंड स्टार्ट द बिजनेस. That's how we started Motilal Oswal. Two bosses, one peon, zero capital. And I think February 87 we started it. जस्ट इसमें कमिंग बैक, तो आपका फिर स्टॉक मार्केट जो शेयर बाजार था पूरा इंटरेस्ट, तो ये इंसिडेंट के बाद ही ऐसे इंटरेस्ट है या आप आर्टिकलशिप के टाइम में पहले से आप शेयर बाजार में थे? भाई शेयर मार्केट तो मैं 1980 से चालू हूँ मैं. अच्छा. 1980 तक आई वाज ऑलवेज अ रीडर. I mean, even
इवन इन नागपुर एंड रायपुर एंड ऑल आई वॉज रीडिंग. सो रीडिंग से क्या हो गया था कि कहीं न कहीं जाके जो है आई वॉज द ओनली रीडर ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स इन नागपुर इन 74-75. गॉड नोज व्हाट आई यूज्ड टू रीड, बट आई यूज्ड टू रीड. 4 पेज का आता था, 4 मतलब 8 पेज का. So I used to take interest in what is happening in corporate world in whatever possible way. So when I came in Mumbai, my brother was in shipping, so he had some savings because he was working for foreign shipping company. So he used to get salary of about 40,000-50,000 bucks or more, I think. So he had 1 or 2 lakh rupees saved. So I said, Bhai Sahab, why don't we invest in stock market, because that will give good return instead of giving for 2-3% to the State Bank of India. So that's how with his seed money, I started looking for a broker and started learning the game. And then I got so fascinated by the whole thing, by stock market and balance sheets and company. इधर CA में पढ़ाई कर रहे थे आप, how to read the balance sheet, and इधर स्टॉक मार्केट भी आप पढ़ रहे हो, तो ऐसे सब मिला के देन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग 200-300 बैलेंस शीट्स ऑफ माई ओन. माई वीकेंड हॉबी बिकेम कलेक्टिंग बैलेंस शीट्स एंड रीडिंग बैलेंस शीट्स. सो आई वॉज काइंड ऑफ दैट टाइम दिस डेटाबेसेस वर नॉट देयर. सो आई वॉज अ रनिंग encyclopedia ऑफ 200-300 इंडियन कंपनीज. आई वुड नो. उस समय क्या था, सब लाइसेंसिंग था, तो उसमें आपका कैपेसिटी कितना है, कितने टन का आपका कैपेसिटी है, कितना आप बनाते हो, कितना व्हाट इज द रॉ मटेरियल, सब पूरा देना पड़ता था. डिस्क्लोजर वाज क्रेजी. तो वो सब उससे सब सीखते गए हम कि मार्जिन स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर क्या है, कैश फ्लो क्या है, बिकॉज वी वेर ईजी विद दैट. ऐसे धीरे 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 मतलब सो दैट बिकेम माई फाउंडेशन टिल अबाउट 85 और सो. एंड फिर उसके बाद तो वंस आई बिकेम CA, देन आई गॉट इनटू एक्चुअल इक्विटी रिसर्च. सो आई हैड एक्सेस टू द फ्लोर ऑफ द स्टॉक exchange. I was not doing Sauda, but I've never transacted anything in the stock market. Never in life. I've never bought one share in the stock market. Okay. Yeah, I've always kind of recommended, or dealing was always done by Moti. He used to ring the. He used to bell. go to the ring, Yeah. and he used to do the Sauda and all. So, but I know, I have seen how the stock market used to function, how the price was discovered, on an ongoing basis as the market opens. So वो सब मैं देखा हूँ मैं, and it was a fantastic beginning. तो इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ, तो किसी ने आपको सिखाया नहीं शेयर मार्केट क्या होता है, तो आप खुद से ही सीखे हो पढ़ के. पूरा पढ़ के. आपकी एडवाइस होगी जो यंग इन्वेस्टर्स अगर उनको भी सीखना है तो मतलब खुद से सीख सकते हैं. अभी क्या होगा, देखिए उस समय क्या था, म्यूचुअल फंड थे नहीं, तो इस सब के बस की बात नहीं. लेकिन जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आप हो या एनीबडी हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज और समथिंग, दे मस्ट बाय द स्टॉक्स. एक तो पहले रीडिंग हैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको सिखाएगा कौन. आपको अभी तो इंटरनेट हो गया, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन गेट ब्लॉग्स और व्हाटएवर योर वीडियोस. 1000 वीडियोस मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, इंटरनेशनल मिलेंगे, सबको तरीके से मिलेंगे, एंड यू गाइस आर गुड इन सर्चिंग देम. तो एक तो वो अच्छा होगा कि आपके पास अभी कंटेंट है, आपको आप में क्यूरियोसिटी है क्या. भाई गूगल में जाओगे तो आपको क्यूरियोसिटी तो आपको दिखाने का ना, क्या पूछने का. वो तो बेचारा बैठा है आपको सर्व करने का, चैट जीपीटी आपको सब कुछ बताएगा, बट आपको क्वेश्चन तो आपको पंच करने का है, तो वो काम आपको करने का है. सो यू हैव टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट इन व्हाट टू पंच एंड कीप डूइंग इट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ डू यू बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट यू वांट टू नो, एंड धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको. एक्चुअली देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन लाइफ, प्राइस एंड वैल्यू. प्राइस सबको मालूम, वैल्यू किसी नहीं मालूम. प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट. नाउ वैल्यू कैसा डिटरमिन करने का. अच्छा, खास बात क्या है, ये बाजार ऐसा है जहाँ 10 का चीज़ 100 में बिकता है और 100 का चीज़ 10 में मिलता है. आपको वैल्यू समझना जरूरी है. अच्छा, जब वैल्यू एक्चुअली समझ में आता है तो यू विल बी वेरी अलोन. कोई नहीं देख रहा, उसके कारण तो आपको मिल रहा है ना सस्ता. कोई भी एक ऐसा आप एंगल पकड़ लिए, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है, योर नॉलेज अबाउट द बिजनेस, योर नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, और योर नॉलेज अबाउट द एंटरप्रेन्योर, कुछ भी एक ऐसा यूनिक चीज़ जो आपको मालूम, किसी और को नहीं मालूम है, दैट अलाउज यू टू सीक द वैल्यू इनटू अ कंपनी विच इज नॉट नोन टू एवरीबडी. यू आर अहेड ऑफ द क्राउड आएगा घूम फिर के. वैल्यू में चक्कर क्या है कि वैल्यू ऑफ प्राइस, जैसे वैल्यू यहाँ है, वैल्यू यहाँ है और प्राइस यहाँ है, तो यहाँ 100 रुपये का वैल्यू है, 10 रुपये का प्राइस है. अब वो 100 रुपये का वैल्यू दिख रहा है आपको, ओके, मार्केट इज ऑल्सो सीइंग, बट मार्केट इज नॉट वो, लेकिन इनविजिबली वो मार्केट वहाँ जाएगा.
तो वो क्या है, यू आर अहेड ऑफ द रेस. मे बी कंपनी छोटा है, मे बी कंपनी ऑब्सक्योर, इट इज़ इन छोटा साइज है, या कुछ ना कुछ ऐसे है रीज़न जिसके कारण से उसका वैल्यू इज़ नॉट डिस्कवर्ड बाय द मार्केट एंड यू कैन सी दैट वैल्यू. अब जाके जो है ना फिर जर्नी चालू होती है. आपने खरीद लिया, उसके बाद जो वो धीरे धीरे 2-4 लोग, आप भी बताओगे सबको जाके मैंने खरीदा, तो धीरे धीरे वैल्यू इज बीइंग डिस्कवर्ड एंड द इट गोज अप टू द प्राइस एंड एक्चुअली नॉट ओनली गोज टू द प्राइस, इट ओवरशूट्स. पहले आपको 100 रुपये का वैल्यू है, 10 रुपये का प्राइस है, वो फिर धीरे धीरे जो है वो प्राइस जो है ना 100 चलाता है और 100 का 200-300 आता है. अभी देखिए जब एप्पल खरीदा, वन ऑफ द बिगेस्ट बेट ऑफ बफेट वाज एप्पल व्हेन ही बॉट, 12-15 का पी था, दुनिया को दिख रहा था, दुनिया को दिख रहा था. खुद हम यूज़ कर रहे थे एप्पल, ऐसा तो नहीं कि भाई अननोन चीज़ है, कंज्यूमर प्रोडक्ट था, ओके, बट नोबडी हैड फेथ इन एप्पल, ये डिसरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बफेट ने खरीदा, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया. ओके, ही मेड द मैक्सिमम मनी इन दैट. अब उन्होंने बेच दिया आधा. सो नाउ क्लियरली एज पर हिज कैलकुलेशन प्राइस हैज रीच्ड वेरी क्लोज टू द वैल्यू, और मे बी इट इज ओवर शॉट. So he has done that second exercise of booking profits. So he has sold half of it. तो ये जो बाजार का जो ये है मजा है, ये जो वैल्यू ऑफ प्राइस को ये जो समुद्र मंथन है वो कंटिन्यूस चलता था. 4,000 कंपनी लिस्टेड है, 4,000 कंपनी में रोज ये कहानी है. 4,000 कंपनी आधे या तो दे आर प्राइस इज हायर देन वैल्यू एंड अदर हाफ वैल्यू इज हायर देन प्राइस. Extent could be different. What was the first time you got your money success and कितना पैसा था, कितना अमाउंट था, आपने कब टेस्ट किया था सक्सेस? सी स्टॉक मार्केट में पहली बार मैं ब्रदर के पैसे बताया आपको. सो ब्रदर के पैसे से आई थिंक आई बॉट एक सेमी इंडिया का कंपनी होती थी. दिस यूज टू बी अ फाउंडेशन कंपनी, फाउंडेशन एक्सपर्ट, इट वाज अ सीमेंटेशन ग्रुप फ्रॉम यूके. एंड उसका ऑडिट जो है क्या ना, देयर वाज सम फॉरेन ऑडिट कंपनी, तो उसका जो ऑडिटर जो था वो मेरा रूम पार्टनर था. सो ही यूज्ड टू हैव फन गोइंग टू हांगकांग, गोइंग मतलब, एंड दे वर बीइंग ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली एज एन ऑडिटर. तो वो बताता था कहानी, तो मतलब तो एक बार बैलेंस शीट तो लेके आ, क्या है इतना मतलब ब्लू चिप बोलो तो है क्या करके. सो ही गॉट मी द बैलेंस शीट एंड आई रेड द बैलेंस शीट. देन अगेन वही वैल्यू प्राइस डिस्कवरी. सो उस समय तक तो मतलब जो समझ थी उसका आपसे लगा, वो 15 रुपये का भाव था उसका, वो इट वॉज जस्ट लिस्टेड एंड नो बडी वॉज नोइंग. माई एक्सेस टू बैलेंस शीट, माई नॉलेज अबाउट द कंपनी, इट्स अ ब्लू चिप, इट्स अ ग्लोबल कंपनी, यूके कंपनी. उस समय उसका फेरा कंपनी का बहुत तूफान भी था. हाँ, सो आई रेड एंड ऑल, आई फाउंड इट मतलब डर्ट चिप, लिटरली लाइंग ऑन द काइंड ऑफ टू बी पिक्ड अप, यू नो. तो ऐसा मैं बोला कि पहला हम 500 से इसका खरीदते हैं, तो कुछ कितना 7-8 हज़ार 10 हज़ार में ऐसा कुछ खरीदे थे हमने. और वेरी क्विकली नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में इट बिकेम 45-50, यू नो. सो दैट्स हाउ द फर्स्ट ट्रेड हैपेंड. बट वेरी नेक्स्ट ट्रेड advised by a very respected consultant, you know, a gentleman who helped us understand a lot of things, but he recommended was a Kohinoor Mills, which was just on the verge of bankruptcy or all kinds of trouble. So, but then I bought at 100 and maybe sold at 70, 75 or something, the moment we realized we are into wrong counter. So, you know, and that was advised. Then I realized, boss, अपनी लड़ाई अपने को खुद को लड़नी पड़ेगी, खुद ही अपने सीखना पड़ेगा. दैट वन ट्रेड ऑफ मे बी अ लाख और समथिंग, दैट टॉट मी एवरीथिंग. बॉस ये तो यहाँ तो जिंदगी अकेले ही है, आपको खुद को ही लड़ाई का मतलब वन मैन आर्मी पूरा है. ये बिजनेस जो है ना वन मैन आर्मी है. आप ही मतलब भाई कंपनी बड़ा बना लो बात अलग, बट जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें किसी और का हेल्प यू कैन आस्क, बट जजमेंट आपका होना चाहिए. हाउ मच मनी डिड यू लूज इन द सेकंड? नहीं, 10-20 हज़ार उसमें खेलते ही मतलब था ही नहीं ना, पैसा ही था ना, वो 1-1.5 लाख 2 लाख का तो पोर्टफोलियो था. करेक्ट. तो क्या कमा लोगे उसको, कमा लोगे. आपने एक और इंटरव्यू में ऐसे बताया था कि जो हर्षद मेहता बुल रन हुआ था तब आपने काफ़ी पैसे कमाए थे वो दौरान भी, एंड आपका पोर्टफोलियो जैसे 0 था, फिर 0 से 30 करोड़, फिर 10 करोड़, 10 से 100 करोड़. ये स्टोरी भी काफ़ी पॉपुलर है. बट ये लोगों को ये नहीं पता होगा कि हर्षद मेहता ऑल्सो, आई थिंक दैट टीम हैड अप्रोच्ड यू एंड आपने डिनाई किया था कि he was a icon, iconic guy. And incidentally, I knew his brother, and hence he made me meet him.
Okay. And Harshad Bhai was nice enough to be very warm and offered to do business with us. Because he needed a lot of brokers to execute his trades. His trades were in multiples. We said, boss, हम बहुत छोटे लोग हैं, boss अपने नहीं करने का है सब. थोड़ा सा तो था ना, मोमेंटम तो था ही उस समय, मतलब यू आर नोइंग व्हाट यू आर डूइंग. सो दैट वी अवॉइडेड डूइंग बिजनेस और ट्राइंग टू डू बिजनेस. वी डिडंट फॉल इनटू द ग्रीड. See, nothing. It was just a greed. I mean, if you are doing a 1 crore rupee trade every day, and he could have given you 1 crore himself, trade. और उसमें 1-1.5 लाख रुपया, पहले तो 1% 1.5% ब्रोकरेज बनता था ना. सो लाख रुपया पर डे एक ही क्लाइंट से बन सकता था. दैट वाज अ पोटेंशियल. I mean, लाख रुपया पर डे इज लाइक crazy amount of money at that point of time. Yeah. So that was a potential, but we said, मतलब हमारे पास resources नहीं, छोटे लोग हैं, नहीं किए. So that, yeah. And in hindsight, you think it was a correct decision? I mean, hindsight में yes. I mean, ऐसा नहीं है कि that would have destroyed us or anything like that, but we could have been in trouble later on or something like that. Whatever. I mean, see, stock market में क्या है कि risk बहुत है. ये क्या पूरा पैसे से भरा हुआ है, चारों तरफ पैसा है. तो पैसे के आते ही सब ग्रीडी हैं, हम भी ग्रीडी हैं, क्लाइंट भी ग्रीडी है, पूरी दुनिया ग्रीडी है यहाँ पर जो आते हैं. अब उसमें क्या है, यू आर वॉकिंग थ्रू, चारों तरफ पैसा दिख रहा है, आप जो पैसा आपको नहीं बिलोंग करता उस पैसे के लिए आप चले जाते हो. सो ऑब्वियसली यू टेक द रिस्क, इधर यू लिवरेज मोर और यू टेक द रॉन्ग क्लाइंट और यू डू द रॉन्ग ट्रेड और यू डू समथिंग एंड दैट ओपन्स द डोर फॉर द रिस्क टू एंटर योर हाउस. और फिर आके आपको धुलाई करता है बाद में. एंड लाइक दिस वन बाय वन पीपल कीप फॉलिंग बाय द वे साइड. सो एक्चुअली आप देखेंगे रास्ता, इसमें आपको बहुत सारे ब्रिलियंट लोग आते हैं और जाते भी हैं. वेरी फ्यू सर्वाइव लॉन्ग टर्म. एंड कंपाउंडिंग टू वर्क यू नीड टू फर्स्ट सर्वाइव. तो उसमें जो बफेट लोग का कोड है ना, टू फिनिश फर्स्ट यू हैव टू फिनिश. मतलब आपको वो फिनिश लाइन तक तो जाओ ना आप, अदरवाइज आपको तो यू आर नॉट इन द रेस. आप बहुत स्पीड चालू किए, हाफ द रेस यू रैन एंड वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया तो खलास हो कहानी. वॉरेन बफेट सर से ऐसे पूछा था ना कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल सब लोग कॉपी करके आपके जैसा क्यों नहीं बनते, तो वो उन्होंने बताया था नोबडी वांट्स टू बिकम रिच स्लोली. You put it aptly. कंपाउंडिंग के बारे में बात करते, लेट्स स्पेंड सम टाइम देयर. हाउ इम्पोर्टेंट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड लोग हार्डनेस कैसे कर सकते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को? आप एग्जांपल्स के साथ अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो. देखिए, कंपाउंडिंग is a law of universe. Everything is compounding. The universe is compounding. Economy is compounding. Companies are compounding. Your value of investment is compounding. The whole life is about CAGR. CAGR. Okay. So how does the compounding work? Why Einstein kind of guy to say it is eighth wonder of the world? Now, how does the compounding work? In the sense that, so rule of 72. Okay, so rule of 72 means what? 72 divided by percentage gives you number of years in which it will double, and 72 divided by number of years gives you approximately the percentage which will double. So 72 divided by 5 gives you 15%, or 72 divided by 15 gives you 5. This is the more total the same. How to use it? So, if the flat where I am living, that flat was originally allotted at 150 rupees per square foot. When 1978. Okay. Today the price is 1,50,000 rupees per square foot. 1000x. In how many years? 46 years. 46 years. Now tell me the compounding. Compound annual growth rate. Yes. At what rate this 1000x would have happened? So I'll apply the rule of 72. So 1000x matlab it is becoming double. 1000 is 2 raised to 10, I think. 2 raised to 9, 2 raised to 10 मान के चलते. So 2 raised to 10 अगर 1000x है तो हर 10 basically it is doubling 10 times. तो 46 years में 10 बार तो 4.6 years में डबल हो रहा है. Every 4.6 years अगर डबल हो रहा है तो 72 upon 4.6 तो 72 upon 5 कर लेते हैं तो 15% कैगर होगा मेरे हिसाब से. राइट. सो दिस इज द प्रोसेस बट नोबडी डज इट. आपको क्या लगता है आपने दुनिया लूट लिया लगता है बाय बाइंग एट 150 एंड सेलिंग एट 150,000. ऐसा इससे अच्छा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? बट इट्स ओनली 15%. माई इंडेक्स इज डूइंग 15%.
You can just buy the index and make as much as Samudramal has appreciated. But nobody knows. So now ये तो हो गया past. So it has created an understanding of how glorious was the past. You created a bridge, mental bridge, कि भाई 15 टका से बढ़ेगा तो 150 रुपये और 1.5 लाख हो जाएगा. ये आपके दिमाग में बैठ गया. अब this compounding creates bridge between 2 points of time to the present. अब आपको फ्यूचर का आपको समझने का. Everybody wants to know the future. Where the index will go? Where will index go? अरे किसको मालूम किधर जाएगा? जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा. But if you have to make an estimate, what will you do? You will say last 40 years में इंडेक्स कितना बढ़ा है ना. 100 का भी कितना हो गया? 80,000 whatever. सेंसेक्स is 82, 83,000 पता नहीं इतना कितना हो, ऐसा कुछ है ना. हाँ 82 से 82,000 समथिंग रहता है. तो कितना बढ़ा? Again you can do the compounding. है ना. So how many years it is? You can do it. 40 years. 44 years. हाँ. In 44 years, how many times? 800 times. कर लीजिए आप. इसमें सेम उसमें आएगा आसपास. एक परसेंटेज लोअर. ओके. 15% के आसपास, 14.5, 15% के आसपास आएगा. अब 15% से हुआ तो if I do 15% for the next whatever number of years you ask. So in how many years you double at 15%? 5 years. 5 years. 10 years में कितना होगा? डबल, मतलब डबल का डबल. So आपका if it is 10 years 4x. 20 years में कितना होगा? 16x like that. So compounded thinking बहुत जरूरी है. See, one is to understand compounding. Second is to have compounded thinking. मतलब in any see, एक तो क्या आपको मालूम है, but do you think in compounded way? Because natural thinking, God has not designed you to think in compounded way. 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40 इस टाइप. So लोगों को जनरली पूछो ना कि 10 साल में 10 गुना तो 20 साल में क्या हुआ? 20, 30 ऐसा जवाब आता है. Nobody says in 10 years 10 times, so 20 years 100 times, and 30 years 1000 times, and 40 years 10,000 times, 50 years 1 lakh times, and 60 years 1 million times. If you are a small kid, you actually can do your money 1 million times. 60 years तो मिलेगा आपको. आप तो सब ब्रिलियंट लोग हो. 20-22 साल में आपको रैंक चार्ट अकाउंट मिल गया. तो आप लोग इतना अच्छा फिट हो आप, तो मान लो 85, 90, 100 तो कोई भी जिएगा ना. तो 60 इयर्स आपको कंपाउंडिंग है. आप 10-5 लाख रुपए से भी चालू करो तो कहाँ पहुंचोगे आप? सोचो आप. यू कैन बीट बफेट. So having that plan, so that creates, compounding creates bridge between present and future. क्योंकि हर आदमी को फ्यूचर जानने का है. एटलीस्ट फ्यूचर के प्लान तो करने का है. So you plan at 15% or 25%, that is your call. That is your competence. So अब मेरे को, see, if I decide to grow at 25% and say in next 30 years I want to be 1000x from where I am, है ना? So I have to see to it that I conduct myself in such a way that I make 25% gain every year. Now how do I gain? If I go to the market, that is going to give me 15%. Across the portfolio, it is not going to give me some 40-50%. It is going to give me 15%. Maybe I am very smart or something like that, so it might give me another percent or two more, 16-17%. But how do I bridge that 8% gap? That's what Motilal Oswal does. I earn in Motilal Oswal, and whatever is left out of dividend, that is being put here. So 17% I earn on my portfolio, and another 7-8%, 10%, depending on the business time and all, it goes into the treasury. So the treasury is continuously growing at 17% or 18%, and it is also being pumped with the fresh flow of money, free cash flow. Right. So that is giving the compounding of 25%, 27%. But how far can it go? Only time will tell. Yeah. Is it reasonable to assume कि कोई young investor अगर invest करता है तो 15% एक reasonable rate of return मान के चल सकते हैं, right? That is what has been the equity or mutual funds में डाले. See, in compounding, what is important is to understand the game first. Don't draw what to do. Just first understand कि वो मैं कितना. See, क्या हो जब आपका बेस छोटा रहेगा ना, आपका competence is more than the base. See, compounding का power क्या है? Every 3 years, 4 years, the base changes. See, from 1 to 10 is also 10x. 10 to 100 is also 10x, and 100 to 1000 is also 10x.
and a lakh to million is also 10x. So compounding is very neutral, very democratic on that. So the base keeps changing, and base keeps changing means your effort required to go to the next base also exponentially goes up. So when you want to go from 1 to 10, you have to earn only $9. When you go from 10 to 100, you have to earn $90. Yeah. So you need that kind of a opportunity in the economy, and that kind of a game you have to play. So what Charlie said, it is not only important to understand the power of compounding, what it takes to make it happen. So your job is to design the business model in such a way that automatically takes care of the end game. See, 30 years henceforth, in 28, 29 and 30 years, you'll double. So if it is to go to 1000x, 500x will happen in last 3 years. Wow. 27th year will be 500 times, and 30th year will be 1000 times. Yeah. So I have to earn that much in the last 3 years. You start from 1 today, but 28, 29, 30, 3 years में आपको 500 से 1000 करने का. So delta in 3 years is going to be 500. टेस्ट चेक है तो जैसे आपने एक पॉडकास्ट में बताया था रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच यू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक. कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है मेरे जैसा ही जो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स कैसे असेस करने चाहिए, एंड इफ यू कैन गिव एग्जांपल्स बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड लाइक इन अ लॉट ऑफ कंपनीज. आपने बताया अभी ये इन्फोसिस में आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, हीरो होंडा में भी किया है, देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इज समथिंग विच इज बैक्ड बाय मोतीलाल ओसवाल. तो इसमें फिर कैसे लाइक कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? देखिए, इन्वेस्टिंग जो है ना एट वन लेवल वेरी कॉमन सेंसिकल सिंपल है. आप चालू करें कि भाई बिजनेस इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट. आप बैंक में आते हो, फिक्स डिपॉजिट क्या करता है, आपको कैपिटल गारंटी होता है कि भाई आपको 100 रुपये वापस मिलेगा और 5% आपको ब्याज देता है. आप वही पैसे जो है आप कोई बिजनेस में लगाओ. यदि 5% ही देगा तो आप क्यों बिजनेस में पैसे लगाओगे और रिस्क लोगे? वहाँ तो कैपिटल गारंटी नहीं है ना. तो आपको कम से कम से मतलब मैं बोलूँ कि भाई बिजनेस में लगा 15% चाहिए ना. यदि 5% में रिस्क फ्री मिल रहा है मेरे को, तो 10% एक्स्ट्रा तो चाहिए ना फॉर गिविंग यू टू लूज द मनी. इफ यू डोंट डू वेल यू माइट लूज द मनी ऑल्सो. सो आई एम टेकिंग द रिस्क ऑफ कैपिटल. बैंक में नहीं रहता कैपिटल रिस्क. सो फॉर टेकिंग दैट रिस्क आई हैव टू अर्न एटलीस्ट 15%. अच्छा, यदि बट बिजनेस का क्या है, देयर आर 2007 का जो एक पेपर है ग्रेट गुड ग्रूसम बाय बफेट. वो इस सब आउटस्टैंडिंग पे मेरे कहता है दिस इज द बेस्ट पीस, बेस्ट 4-5 पेजेस ही हैज़ एवर रिटन, एटलीस्ट बाय माय असेसमेंट. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिखा है, बहुत अच्छी चीज़ बोले हैं, बट दीज 3 आर द सेमिनल. उसमें क्या बोलता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. ग्रेट गुड ग्रूसम. तो ग्रूसम कौन सा बिजनेस होता है? जैसे 5% आपको ब्याज मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है 2%. मतलब 100 करोड़ लगा के 2 करोड़ का नफा है. लॉस है तो बर्बादी है, बट प्रॉफिट है 2% का. वो द रियल ट्रैप इज नॉट द लॉस. यू नो हाउ टू अवॉइड, यू विल अवॉइड दैट, बट द कंपनी इज एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट. अब आपको ये समझ में आता है कि यार प्रॉफिट है तो तकलीफ क्या है करके, लेकिन ही इज अर्निंग ओनली 2-3%, वे बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो इट्स अ मोस्ट यूजलेस बिजनेस. क्यों क्या होगा उसमें? आपको हर आदमी चाहता है कि भाई चलो मतलब मैं 1000 करोड़ लगा के मैं कमा रहा हूँ, समझ लो 20 करोड़ 30 करोड़ कमा रहा हूँ. तो आपकी क्या ख्वाहिश रहेगी? वो 25 करोड़ जो है उसको 50 करोड़ करो. तो 50 करोड़ प्रॉफिट करने के लिए क्या करोगे आप और 1000 करोड़ लगाओगे उसमें. आई मीन इट्स अ डिजास्टर वेयर इट्स अ बॉटमलेस पिट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रक्शन. ओके, सो दैट इज द बल्क ऑफ द कंपनी विच आर लिस्टेड इन द मार्केट. ग्रूसम. सो पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया 15% कमाते हो नहीं कमाते हो. मैं तो पहला देखता हूँ 15% कमाता नहीं कमाता. रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी क्लीन हो सके तो अनलिवर्ड, बट लिवर्ड है तो भी चलो ठीक है. 15-17% नहीं कमाता, मेरे को बात ही नहीं करने का. जहाँ तक तो क्या हजामतगिरी कर रहा है, क्या बिजनेस चला रहा है, क्या कर रहा है? सो फर्स्ट थिंग इज दैट. मतलब दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस आई लर्न फ्रॉम बफेट. अदरवाइज आई वॉज EPS फोकस्ड. वही आप 2% की कमा रहे हो तो EPS ही देख रहे हैं आप. तो बाजार बहुत स्मार्ट है, बाजार को समझ है कौन सी कंपनी की इज्जत है. कंपनी सिर्फ बाजार किसका कीमत लगाते है? जो कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है उसको ही तो वैल्यूएशन मिलता है ना. तो एक तो हो गया आपको बैड बिजनेस.
What is a good business? The business which earns more than 15%, 13, 14, 15%. Then there are businesses, see, bulk of the business, see, करीब 2/3 of the business are gruesome. They don't earn cost of capital. They don't earn 15%. They earn maybe 5-6%, but they don't earn 15%. बहुत कम कंपनी कमाती है 15% से ऊपर सस्टेन वे. एक आध महीने कमा लेगा, लेकिन 5 साल 7 साल निकालें तो बहुत कम हो जाता है. Then 15 to 25. Most of them, they are good businesses. Like banks and all, they earn 17-18%. All the NBFCs and सब वो 15 से 25 के बीच कमाते हैं. फिर 20 के ऊपर चालू होता है सुपीरियर बिजनेसेस, जिसमें फ्रेंचाइजेज आते हैं. आपके ये एप्पल और गूगल, ये सब जितने टाइप के ग्लोबल, यहाँ पर एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, जितने कंज्यूमर कंपनीज हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं. नेस्ले वगैरह 100 टका कमाते हैं लोग. 100 टका आप समझो आप. सो बिजनेस इज व्हाट? कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन. आपने कैपिटल साल के शुरू में डाला, कितना निकला बाहर. तो ये सब कंसेप्ट आपको मिलेंगे जब आप बफेट को पढ़ोगे. तो आप हाउ टू लुक एट अ बिजनेस, एंड इट्स कॉमन सेंस. ही डजंट टॉक सम अल्फा बीटा गामा, ही टॉक्स कॉमन. इट मेक्स सेंस. कैपिटल इनपुट आउटपुट मशीन. नाम बोलो, सीमेंट बोलो, स्टील बोलो, कंज्यूमर बोलो, कुछ अंतर नहीं पड़ता है. इट्स ऑल सेम इन द प्रिज्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. मैं तुमको पैसे दिए पैसे कमाने के लिए, तू क्या करता तू जान. मैं तेरे सीमेंट बना, तेरे को समोसा बना, बट मैं 100 रुपये दिया, उसको 200 कर दे मेरे को साल के आखिरी में. सो टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटली इट्स अ गुड बिजनेस और बैड बिजनेस. Bad business will never compound your money because he is compounding his money at 3%. तो आपको क्या उधार होने वाला है? आप तो उतना ही कमा सकते हो जितना बिजनेस कमा रहा है. You own part of the business, huh? So you have invested fundamentally in bad business. So you will decompound. Forget about compounding. So that's the end of the game. तो वो तो उधर जाने के नहीं, वो अंधेरी गली उधर जाने के नहीं. So that is one thing I am very clear about. मैं मतलब सट्टा भी करूँगा या मतलब कभी महीने 2 महीने के लिए खरीदूँ, मैं खराब कंपनी नहीं खरीदूँगा. मेरे मालूम है कहीं कहीं जाके धोखा देगा ही देगा. So buy good businesses, good and possibly great businesses, which are very few, 10, 15, 20 in any market, maybe 25. At max 50 companies are great businesses, and there'll be say 200 जैसे 4,000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें जब 20% मतलब समझ लो 500-600 कंपनी जो है ना गुड होगा, और बाकी सब ग्रुसम. देन गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट, वो बहुत टेंशन वाला काम है. वो भी बफेट साहब ने समझाया कि 3 ही चीज़ देखना है आपको. आपको उसका कॉम्पिटेंस देखने का है. हाँ, कॉम्पिटेंस से मालूम पड़ता है भाई तुम 15-20 टका कमा रहे हो, 30 टका कमा रहे हो, मतलब आपको अपना धंधा मालूम है. यदि धंधा नहीं मालूम तो वो कमाई होने सवाल नहीं उठता है. आपको मालूम पड़ता है प्रोडक्ट बिक रहा है, सामने दिख रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं वापस, है ना. तो कॉम्पिटेंस इज नॉट इन डाउट. फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट से मिलते हो तो 2 चीज़ समझने का. यदि कॉम्पिटेंस अच्छा है तो 2 चीज़ समझने का है, कितना गुदा है, कितनी आग है, पैशन कितना है. और ये बात करके ही समझ आ जाएगा. वो तो बात करके समझ में आएगा. लगे रहो, चाय पीते रहो, खाना खाओ, उसका प्लान विजिट करो, वो बताते रहेगा अपना प्लान क्या क्या करने का उसको. कई लोग मरदूस होते हैं, दे आर इन स्टेटस को मोड, मैनेजिंग, इस टाइप का. कई लोग होते हैं तोड़फोड़ होते हैं, मतलब यू कैन सी दैट. वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों को इंटरव्यू करोगे. एंड देन थर्ड इज इंटीग्रिटी. इनफैक्ट मैं तो पहले इंटीग्रिटी चालू करता हूँ.